I am Chaya Chauhan, Assistant Professor, Pharmaceutical Chemistry from RKGIT College, Ghaziabad. I am taking your lecture for Medicinal Chemistry 1. The subject code is BP402T and this is lecture 7 from the unit 1, and the topic of this lecture is phase 2 metabolic reactions. What are the phase 2 metabolic reactions? As I told you earlier in the lecture, that the metabolic reaction is of two types, the phase 1 and phase 2 reactions. The phase 1 reactions, the drug directly goes to the phase 1 reaction where it forms the polar metabolite, and in the phase 2 reaction drug may directly enter into the phase 2 reaction, or the phase 1 metabolite may undergo the phase 2 metabolic reactions. So, what are the phase 2 metabolic reactions? The drug directly may undergo phase 2 reaction, or the metabolite from the phase 1, they may undergo for phase 2 reaction. So, phase 2 for the drug and for the metabolite for the phase 1 reaction, they will undergo the phase 2 metabolic reaction, and then phase 2 metabolic reaction convert it more hydrophilic drug metabolite, then it will excrete out into the urine or into the bile and eliminated from the body for the termination of the biological activity. So, phase 2 reactions result in decrease in lipid solubility, जो हमारा कंपाउंड है, जो ड्रग है उसकी लिपोफिलिसिटी को कम करता है, and it increases the hydrophilicity of the drug or metabolite from the phase 1 reaction, and then by adding the hydrophilic ionic moieties. क्या ऐड करेगा ड्रग के अंदर? हाइड्रोफिलिक आयोनिक मोieties. लाइक कौन कौन सी मोieties ये ऐड कर सकता है? लाइक ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लाइसिन or methyl moiety or acetyl moiety, they may added to the drug substrate or to the phase 1 metabolite, and they are converted into the ionic hydrophilic molecule, and they get eliminated by the body through urine or through the bile excretion. So, majority of the phase 2 reactions eliminated through the urine and through the bile. So, what are the types of phase 2 reactions? So, these are the types of phase 2 reactions. The first one is the glucuronic acid conjugation, then next is the sulfate conjugation, then conjugation with amino acid. Amino acid may conjugate with the substrate or drug or xenobiotic we can say, or acetylation reaction in which acetyl moiety added to the xenobiotic or to the drug molecule. Then methylation, in this methyl moiety is added to the substrate, and then last one is the conjugation with the glutathione. So, these are the types of the phase 2 reactions: glucuronic acid, sulfate, then amino acid, acetylation, then methylation, then conjugation with glutathione. All are ionic and hydrophilic moieties, and they are added to the phase 1 metabolite or to the drug and will result into the hydrophilic ionic moiety that will excrete out from the urine or from the bile. And these phase 2 reaction, the metabolite is formed that is hydrophilic, more hydrophilic and as compared to the phase 1 metabolite. एंड जो फेज़ 2 रिएक्शंस हैं, बिकॉज इनमें हम हर जगह जो है ये कपल कर रहे हैं, किसी ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कपल कर लिया, सल्फेट के साथ कपल कर लिया, सो इनको हम कपलिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं. सो फेज़ 2 रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शंस, और they are making the conjugate. So, we can say this conjugation also. So, phase 2 reactions are also called as coupling or conjugation reactions. We can call phase 2 reactions as coupling reactions or the conjugation reactions. So, first is phase 2 reaction is glucuronic acid conjugation, and it is the most important of all these phase 2 reactions. This is the biotransformation in the phase 2. Glucuronic acid combines with the substrate, like जिनमें हमारे पास alcohol होगा,
अल्कोहल मॉइटी प्रेजेंट होगी OH, जिसमें फिनॉल प्रेजेंट होगा या फिर एस्टर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो या अमाइंस हो। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे हमारे पास OH है या फिर हमारे पास अल्कोहलिक मतलब फिनॉलिक OH है C6H5, या फिर हमारे पास अमाइन है या फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप दे विल अंडरगो phase 2 reactions, they will undergo phase 2 reaction and they will form the conjugate with the glucuronic acid, they will form the conjugate with the glucuronic acid। तो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ में कौन कौन से जो कॉन्जुगेट हैं वो क्या बन सकते हैं? they can form OH, C6H5OH, NH2COH, such type of functional group form conjugate with the glucuronic acid, which is the enzyme that is important for the glucuronic acid conjugation or that carry out this enzymatic biotransformation. The enzyme is UDP glucuronyl transferase, UDP uridine diphosphate, UDP glucuronyl transferase, because ये जो हमारा मोइटी ट्रांसफ़र हो रही है वो यूरिडिन डाईफॉस्फेट से हो रही है। आप ये ग्लूकोरोनिक एसिड को ट्रांसफ़र कर रहा है तो ग्लूकोरोनाइल, और चूँकि ट्रांसफ़र कर रहा है सो ट्रांसफेरेज। सो एंजाइम जो है वो है यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज, और मेनली ये एंजाइम हमारे लिवर में प्रेजेंट है एंड अपार्ट फ्रॉम लिवर एक्स्ट्रा हिपैटिक साइट पे भी प्रेजेंट है, जिसमें किडनी है, लंग्स हैं, स्किन है। ग्लूकोरोनिक एसिड इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा हिपैटिक साइट्स ऑल्सो। सो जब हमने ये ट्रांसफरेज, ये हमें ग्लूकोरोनिक एसिड चाहिए फॉर द कॉन्जुगेशन, तो ये मोइटी मिलती कहाँ से है? सो UDPGA ये हमारा सबस्ट्रेट है, जो एंजाइम है, ये जो हमारा बॉडी में प्रेजेंट एंडोजिनस सबस्ट्रेट है, ये ट्रांसफ़र करता है ग्लूकोरोनिक एसिड मोइटी को। ये जो हमारा सबस्ट्रेट है UDPGA, यूरिडिन डाईफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड, ये एंडोजिनस सब्सटेंस है जो ट्रांसफ़र करता है ग्लूकोरोनिक एसिड को, एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। सो ये बनता कैसे है हमारा ग्लूकोरोनिक एसिड? ये हमारा जो ये ट्रांसफ़र हो गया, और ये ग्लूकोरोनिक एसिड किस किस के साथ में रिएक्शन शो करेगा? अल्कोहल के साथ कर सकता है, फिनोल्स के साथ कर सकता है, और जो हमारा ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हैं इनके साथ करेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा फेज़ 2 मेटाबोलाइट बनेगा, उसमें क्या होगा? उसको हम बोलेंगे O ग्लूकोरोनाइड। जो हमारा फेज़ 2 मेटाबोलाइट बनेगा इसके बाद, कॉन्जुगेशन के बाद, दे विल कॉल्ड एज O ग्लूकोरोनाइड। सो लाइक एसिटामिनोफेन, ये हमारा पैरासीटामोल का एग्जाम्पल है एसिटामिनोफेन, और इसके पास हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे हमारे पास है ये UDPGA, ये हमारे पास है UDP ग्लूकोरोनिक एसिड, ये हमारे पास एंडोजिनस सबस्ट्रेट है, और ये UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लूकोरोनिक एसिड ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे यहाँ OH पे, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो आप देखो यहाँ पे OGA मतलब ये ग्लूकोरोनिक एसिड बन गया। सो यहाँ पे ये UDP जो है वो अलग हो जाएगा, यूरिडिन डाईफॉस्फेट सेपरेट आउट हो जाएगा, और ग्लूकोरोनिक एसिड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑन द ऑक्सीजन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज द ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज ड्यू टू द ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, and the product is called O glucuronide metabolite, O glucuronide metabolite, and this metabolite is formed in case of alcohol, this metabolite will form in case of phenols, या तो फिनोलिक अल्कोहल हो या अल्कोहल हो, उन केस में ये हमारा जो O glucuronide है ये फॉर्म्ड होगा। द नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर द पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। नाउ वी आर फॉर्मिंग द N glucuronide. What we are forming? We are forming N glucuronide. This is N glucuronide. ये N glucuronide means अमीनो फंक्शनल ग्रुप पे ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है NH2, यहाँ पे रिएक्शन होगी। सो ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या है? पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, और ये हमारा जो है UDP ग्लूकोरोनिक एसिड, जो हमने लास्ट उसमें भी देखा, इसमें था हमारे पास ये UDPGA। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया था, ये स्ट्रक्चर है इसका UDPGA का। यहाँ से ये UDPGA, अब UDP सेपरेट होना है और ग्लूकोरोनिक एसिड इसमें ऐड होना है। सो ये मोइटी ऐड होनी है, ये मोइटी ऐड होगी।
सो ये मोइटी कहाँ ऐड होगी, ये मोइटी हमारी ऐड होगी NH2 पे। सो यहाँ देखो आप, यहाँ पे ये NH2 पे ऐड हो गई है, ये NH2 पे ऐड हो गई है, और ये UDP जो है ये हमारा लीव कर जाएगा फ्रॉम द रिएक्शन। द UDP फिर रिलीजेस फ्रॉम द रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ग्लूकोरोनाइड and this reaction is called as N-glucuronidation, N-glucuronidation, and the enzyme will be same, UDP glucuronide transferase enzyme will be the same for this reaction. Now how the acyl O-glucuronide is formed? So if ester is there, एस्टर पे अगर ये लिंकेज होनी है, अगर ये कपलिंग रिएक्शन एस्टर पे हो रही है, अभी हमने किस पे की थी, फिनॉल पे की या अल्कोहल पे की तो O ग्लूकोरोनाइड बना। अगर हम इसको अमाइन के साथ कर रहे हैं तो N ग्लूकोरोनाइड बन रहा है। अब ये रिएक्शन अगर हम एस्टर पे कर रहे हैं, किसी एस्टर पे हम ये रिएक्शन करेंगे, सो असाइल O ग्लूकोरोनाइड बनेगा, जो हमारी वो बनेगा जो प्रोडक्ट, दैट विल बी असाइल O ग्लूकोरोनाइड। असाइल O ग्लूकोरोनाइड कैसे बनता है, ये जो हमारी रिएक्शन है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, इस पे ये एस्टर लिंकेज है, एस्टर लिंकेज हमारे सबस्ट्रेट पे प्रेजेंट है, और इस एस्टर लिंकेज को हम दें ये UDP ग्लूकोरोनिक एसिड, UDPGA इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कपलिंग रिएक्शन होगी। सो ये जो रिएक्शन होगी इसमें ये UDP यहाँ से रिलीव कर जाएगा और ये हमारा यहाँ बाइंड कर जाएगा, ये बाइंडिंग हो गई इस पे, इस फंक्शनल ग्रुप पे, इस फंक्शनल ग्रुप पे बाइंडिंग होगी। सो अगर हमारा एस्टर लिंकेज इन्वॉल्व है तो जो ग्लूकोरोनाइड बनेगा दैट विल बी असाइल O ग्लूकोरोनाइड, दैट विल बी असाइल O ग्लूकोरोनाइड एंड इट इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ एस्टर। सो इन केस ऑफ phenols and alcohol O glucuronide is formed, in case of amino functional group N glucuronide is formed, in case of the ester functional group acyl O glucuronide is formed. But enzyme will be the same, enzyme will be the same for this, that is UDP glucuronide transferase. Now this is the second type of reaction, that is sulfate conjugation. So again and again, because these are the coupling reactions, so we are calling it sulfate conjugation, we are calling it conjugation. So it is important reaction for the biotransformation of steroid hormones. जो स्टीरॉइड्स हैं उनके इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, या फिर बाइल एसिड्स जो हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, या कैटेकोलेमाइंस लाइक एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, वहाँ पे भी सल्फेट कॉन्जुगेशंस होती है। देन फिनोलिक ड्रग्स, जो फिनोलिक मॉइटी है वहाँ पे भी सल्फेट कॉन्जुगेशंस हो सकती हैं, एंड अदर जेनोबायोटिक्स। तो सल्फेट कॉन्जुगेशन विल अकर फॉर द स्टीरॉइड्स, फॉर हार्मोन्स, फॉर द बाइल एसिड्स, catecholamines, then phenolic drugs and other xenobiotics. So sulfate conjugation, when sulfate moiety attaches to the drug or substrate, जब किसी xenobiotic पे sulfate moiety ऐड होगी तो हाइड्रोफिलिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्रग की, एंड दिस विल लीड टू द एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, ये ड्रग के एक्सक्रीशन को प्रोवाइड करेगा। नाउ जो एंजाइम इन्वॉल्व है सल्फेट कॉन्जुगेशन में, वो कौन सा एंजाइम है, सल्फोट्रांसफेरेजेस enzyme that is involved in the reaction or in this conjugation is sulfotransferases, because sulfur moiety transfer हो रही है, so हम इसको क्या कहेंगे, sulfotransferases। जब ग्लूकोरोनाइड moiety transfer हो रही थी ग्लूकोरोनिक एसिड, तो हम कह रहे थे ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज। सो जैसी moiety ट्रांसफ़र कर रहे हैं वैसा ही उसका नाम है, सो ये सल्फोट्रांसफेरेज। अब जो जेनोबायोटिक या हमारा जो सबस्ट्रेट है वो सल्फेटेड होता है बाय दी ट्रांसफ़र ऑफ द एक्टिव सल्फेट, मतलब सल्फेट मोइटी उस पर आके सबस्ट्रेट पे बाइंड कर रही है, तो वो सल्फेट मोइटी प्रोवाइड कौन करता है, ये सल्फेट मोइटी प्रोवाइड करता है PAPS। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म फॉर द PAPS, दैट इज फॉस्फोएडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट, 3 फॉस्फोएडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट, फॉस्फोएडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट PAPS। ये हमारे एंडोजिनस सब्सटेंस है जहाँ से सल्फेट मोइटी आके कपल करेगी विद द जिनोबायोटिक, और जो एंजाइम है वो क्या है, सल्फोट्रांसफेरेज है, ठीक है। सो ये हमारा जो ड्रग है, ये देखिए सल्फेट मोइटी है और ये ATP के साथ रिएक्शन करेगा, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ PAPS, सल्फोएडिनोसिन सल्फोफॉस्फेट, ये बन जाएगा हमारा, ये एंडोजिनस सब्सटेंस बन रहा है। ये सल्फोएडिनोसिन सल्फोसल्फेट, ये इसका स्ट्रक्चर है, structure for the PAPS, this is PAPS and this is the structure for PAPS, and now it will react with the acetaminophen
एसिटामिनोफेन के साथ में ये जब रिएक्शन करेगा ये दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेटेड मेटाबोलाइट। तो कहाँ पे जाके बाइंड कर रहा है ये, सी इट विल बाइंड टू द फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, इट विल बाइंड टू द फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप पे बाइंड करेगा ये हमारा जो सल्फर मॉइटी है, और जैसे ही ये बाइंड करेगा इट विल कन्वर्ट द ड्रग मॉलिक्यूल इनटू द पोलर मेटाबोलाइट, ये सल्फेटेड मेटाबोलाइट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इज है कॉन्जुगेशन विद दी अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड के साथ कॉन्जुगेशन करना है, सो ये भी अनदर मॉलिक्यूल है, अनदर मॉइटी है दैट व्हेन दिस इज कपल्ड विद द ज़ेनोबायोटिक दिस विल लीड टू द एनहांसमेंट ऑफ द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। जैसे ही कोई अमाइनो एसिड में भी स्पेसिफिकली ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा जो बाइंड करता है, जो कपलिंग रिएक्शन में या कॉन्जुगेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, दैट इज़ दी अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन है जो इसमें बाइंड करता है। अपार्ट फ्रॉम ग्लाइसिन ग्लूटामीन इज ऑल्सो फॉर्म्स दी वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेट्स, ये भी वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेट बनाता है। सो जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनोबायोटिक हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है COOH, ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दे विल अंडरगो कॉन्जुगेशन विद द अमाइनो एसिड। सो स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करूँ कॉन्जुगेशन अमाइनो एसिड के केस में, सो ये कहाँ बाइंड कर रहा है, दिस इज बाइंडिंग टू दी ज़ेनोबायोटिक लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड और लाइक अमाइन फंक्शनल ग्रुप के साथ में भी बाइंड कर सकता है। सो जो हमारी मॉइटी है वो उसके साथ में बाइंड करने के बाद दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कपल विद द अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं जो हमें इसमें बाइंड करने हैं, दैट इज ग्लाइसिन, एंड अपार्ट फ्रॉम ग्लाइसिन ग्लूटामीन ऑल्सो फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। सो जो हमारी मॉइटी है जो कॉन्जुगेट बनाएगी किस किस के साथ बना रही है, एरोमेटिक एंड अराइल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स जिसमें एलिफेटिक भी ग्रुप है, अराइल भी फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऐसी मॉइटी, और फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइक बेंजोइक एसिड, ये जो मॉइटी हैं ये कपल करेंगी अमाइनो एसिड के साथ। सो दीज अमाइनो एसिड कॉन्जुगेट्स जो हैं वो लेस टॉक्सिक होंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे यूरिन और बाइल में। सो ऑल कॉन्जुगेशन का क्या एंड रिजल्ट होना है, जो हमारा सब्सटेंस बनेगा वो मोर हाइड्रोफिलिक होगा और लेस टॉक्सिक होगा एंड दैट विल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है दैट इज एसाइल सिंथेज, जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज असाइल सिंथेज। सो अगर इसको रिएक्शन को कैरी आउट करना है, सो रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमने पहले जो हमारा ज़ेनोबायोटिक है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, RCOOH, इस ज़ेनोबायोटिक को हमने एक्टिवेट करना है। सो ये इसके लिए एक्टिवेशन के लिए हमने जो है ये थायोएस्टर बनाना पड़ेगा, इसका कोएंजाइम का। इसको थायोएस्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंजाइम है असाइल सिंथेटेज, सो अगेन ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द लिवर and in some other extra hepatic site it is also present, but majorly it is present in the liver। तो ये जो असाइल सिंथेटेज है ये इसको जो हमारी ड्रग है ज़ेनोबायोटिक है COOH, इसको इसके साथ में कोएंजाइम के और ATP के साथ रिएक्ट करके इसको थायोएस्टर में कन्वर्ट कर रहा है, थायोएस्टर में कन्वर्ट कर रहा है। until and unless it will not convert into the ester, this thioester, it will not undergo conjugation with the amino acid। in the next step it will couple with the amino acid। so पहला जो step है that is the conversion of this ज़ेनोबायोटिक containing carboxylic group will convert into the thioester, coenzyme thioester, and this is carried out by the acyl synthetase, and then this activated form of this thioester will form complex or will form conjugate with the RNH2, ये conjugate बना लेगा RNH2 के साथ। so ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा कब बन रहा है, जब हमने जो हमारी ज़ेनोबायोटिक है इसको एक्टिवेट कर लिया है उसके बाद बनेगा ये, ठीक है। सो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेशन विद अमाइनो एसिड। नाउ दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बॉन्ड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ज़ेनोबायोटिक एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। सो ये आप रिएक्शन देखो, जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हमारा अमाइनो एसिड के साथ मिल के यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप ये दोनों ऐड हो रहे हैं और अमाइड लिंकेज बना रहे हैं CONH2। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारा अमीनो फंक्शनल ग्रुप है,
और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये क्या बनाएंगे, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये, असाइल सिंथेटेज। इवन इन द बिफोर स्लाइड यू विल सी हियर व्हाट इज फॉर्मिंग, CONH, अमाइड लिंकेज, यहाँ भी क्या बन रहा है। लेकिन इसके करने से पहले यहाँ पे रिएक्शन हमने नेक्स्ट में जो है डायरेक्टली शो कर दिया, बट यहाँ पे पहले क्या बनाएगा, ये थायोएस्टर बनाएगा। सो जेनोबायोटिक को पहले एक्टिवेट होना है विद द कोएंजाइम ए थायोएस्टर, और उसके बाद इट विल कपल विद द अमाइनो एसिड, एंड बाय द कपलिंग ऑफ द अमाइनो एसिड विद दिस एसिड it will form the amide linkage, ये amide linkage बना लेगा। Now next is the acetylation reaction. So what we have studied so far, we have studied first one is the glucuronidation, then second is the sulfate conjugation, and then the conjugation with amino acid. This is the fourth one, that is acetylation. So acetylation में क्या ट्रांसफ़र होता है, हमारी एसिटाइल मोइटी का ट्रांसफ़र होता है। एसिटाइल मोइटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम ए टू दी जेनोबायोटिक। जेनोबायोटिक कौन कौन सी हो सकती हैं हमारी, जैसे प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स हो सकते हैं एसिटाइलेशन के लिए, या अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड का भी एसिटाइलेशन हो सकता है, या फिर हाइड्रोजीन या सल्फोनामाइड ग्रुप जिनमें हमारे पास अमाइड लिंकेज है। ऐसे ग्रुप्स सल्फोनामाइड्स, हाइड्रोजीन, या फिर हमारे अराइल और जो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, एंड दी अमाइनो एसिड्स। सो अमीन्स, अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोजीन एंड सल्फोनामाइड, दीज आर दी ड्रग्स और दीज आर दी जेनोबायोटिक्स दैट विल अंडरगो एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन हो कहाँ से रहा है, जो मोइटी है एसिटाइल मोइटी वो कहाँ से मिल रही है हमको, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ये मोइटी हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, फ्रॉम दी एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इस एसिटाइलेशन प्रोसेस में जाती हैं, जो फेज 2 मेटाबॉलिज्म में एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती हैं। दे आर दी पैरामिनो बेंजोइक एसिड, दी डेप्सोन, प्रोकेनामाइड एंड नंबर ऑफ सल्फोनामाइड्स अंडरगो एसिटाइलेशन। सल्फोनामाइड्स जो हैं वो एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती हैं। प्रोकेनामाइड है हमारी CONH2, ये भी एसिटाइलेशन से होगा। डेप्सोन एसिटाइलेशन से होता है। सो ये ड्रग्स हैं जो एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज हो रही हैं। अब एन एसिटाइल ट्रांसफिरेज ये एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैरी आउट करता है। अब चूँकि क्या कैरी आउट कर रहे हैं, यहाँ पे हम अमीनो पे, एन पे, नाइट्रोजन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं एसाइल मोइटी। सो जो एसिटाइल मोइटी हम नाइट्रोजन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो हम इसको क्या बोलेंगे, एन एसिटाइल, और ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसफिरेज। ये एंजाइम प्रेजेंट होता है लिवर में, और यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र करता है एसिटाइल मोइटी फ्रॉम दी एसिटाइल कोएंजाइम ए इनटू दी जेनोबायोटिक और टू दी फेज 1 मेटाबोलाइट को, फेज 1 मेटाबोलाइट को। अब ये एग्जाम्पल है प्रोकेनामाइड का, दिस लिंकेज CONH, ये लिंकेज प्रेजेंट है इसमें, और यहाँ पे NH2 लिंकेज प्रेजेंट है। तो एसिटाइल ग्रुप कहाँ में ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा, ये NH2 पे। तो COCH3 यहाँ से आ गया, CH3CO, ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में से यहाँ पे आ गया। सो ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया। सो इट विल फॉर्म द मेटाबोलाइट दैट इज़ मोर हाइड्रोफिलिक, देन अंडरगो द मिथाइलेशन। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज़ मिथाइलेशन। सो मिथाइलेशन बेसिकली जेनोबायोटिक का कम होता है, और ये मेजरली जो एंडोजिनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनके साथ में मिथाइलेशन ज़्यादा होता है। और मिथाइलेशन बेसिकली किस लिए होता है, उनको मोर एक्टिव बनाने के लिए। जो एंडोजिनस सबस्ट्रेट है हमारे वो मोर एक्टिव बन जाते हैं। लाइक हम एपिनेफ्रीन का और नॉर एपिनेफ्रीन का एग्जाम्पल ले लें। नॉर एपिनेफ्रीन में जब हम मिथाइल ऐड करते हैं CH3, इट बिकम्स मोर एक्टिव। So methylation result in O-methyl metabolite that may have great or greater pharmacological activity and lipophilicity than the parent molecule. तो यहाँ पे parent molecule क्या हो रहा है, it becomes more lipophilic, like conversion of norepinephrine to epinephrine. Then जो मिथाइल मोइटी है वो ट्रांसफ़र कहाँ से हो रही है, जो हमारी मिथाइल मोइटी है वो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्रॉम द मीथियोनिन। ये मीथियोनिन से ट्रांसफ़र हो रहा है, और कौन किसके थ्रू होता है, बाय द एक्टिवेशन ऑफ इंटरमीडिएट एस एडिनोसाइल मीथियोनिन। और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, मिथाइल ट्रांसफिरेज। अब मिथाइल मोइटी ट्रांसफ़र हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, मिथाइल ट्रांसफिरेज।
ये इसका एग्जाम्पल है, O मिथाइलेटेड, N मिथाइलेटेड, S मिथाइलेटेड मेटाबोलाइट बनेंगे। अगर हमारा अमीनो पे कोई मिथाइलेशन हो रहा है, NCH3 बना रहे हैं, तो N मिथाइलेटेड होगा। अगर हमारे OH के साथ में कोई मिथाइलेशन हो रहा है तो O मिथाइलेटेड बनाएगा। अगर SH कोई मोइटी है उस पर हमारा मिथाइलेशन हो रहा है तो हमारा S मिथाइलेटेड मेटाबोलाइट बनेगा। अब जो ये कैसे बन रहा है देखो, S एडिनोसिन मिथ्योनिन, ये हमारा ATP है और ATP में मिथ्योनिन के साथ रिएक्शन होगी, सो ये ट्रांसफेरेज एंजाइम लग रहा है, सो ये बन रहा है S एडिनोसिन साइल मिथ्योनिन, इसको हम सैम बोलते हैं। ये S एडिनोसाइल मिथ्योनिन ये प्रोवाइड करता है मिथाइल फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा जो है ड्रग है या जेनोबायोटिक है या एंडोजिनस सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास ये O है, NH है, S है, और अकॉर्डिंगली इसमें हमारे पास CH3 ऐड हो रहा है। अगर ये O होगा तो O मिथाइलेटेड, N होगा N मिथाइलेटेड, S होगा तो S मिथाइलेटेड मेटाबोलाइट बनेगा। देन कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन, तो ग्लूटाथायोन जो ये हमारा बॉडी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, सो ये जो है सल्फाइड्रिल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है एंड ये मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और जो ये ग्लूटाथायोन है एक ट्राइपेप्टाइड है, ग्लूटामाइन सिस्टेनाइल ग्लाइसिन अमाइनो एसिड की चेन से बना हुआ है, और जो रिएक्शन कैटालाइज होती है वो होती है ग्लूटाथायोन ट्रांसफेरेज से। सो ये जो हमारा मेटाबोलाइट है, जो ये हमारा कॉन्जुगेट है ग्लूटाथायोन, ये नॉन टॉक्सिक जो है हमारी बॉडी में नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनाता है। सो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम ये रिएक्शन को जानते हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन की रिएक्शन है। जब ग्लूटाथायोन के साथ हमारी जेनोबायोटिक ऐड होगी तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सो लाइक अगर मैं एक ड्रग का एग्जांपल देती हूँ आपको, जो हमारी ड्रग है, अगर जो ग्लूटाथायोन है वो हमारा जो आयोनाइजेशन है थायोल ग्रुप का उसको इंक्रीज़ कर देता है, मतलब उसको इसमें थायो फंक्शनल ग्रुप है, सिस्टेनाइल ग्लाइसिन, ये आप देख रहे हो, इसमें थायो फंक्शनल ग्रुप है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो भी ड्रग बाहर से आ रही है वो इसके साथ बाइंड करेगी और नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनेगा और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो ये जो हमारी ड्रग है जो GSH है, इसका काम है ड्रग को बाइंड करना और फिर डिटॉक्सिफाई कर देना बॉडी को। So this is the natural antioxidant present in the body, and these are the references for the lecture, and thank you.